Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a comprehensive video series on YouTube focusing on trigonometric equations. This series covers various topics related to trigonometric equations and is suitable for students studying under the CBSE, State Board, and IIT syllabi. Trigonometric equations, an important concept in mathematics, deals with solving equations involving trigonometric functions. These equations hold significance in the fields of science, engineering, and mathematics, making it crucial for students to have a strong understanding of them. The videos uploaded by Ignited Minds Tutorials aim to provide a clear and concise knowledge explanation of trigonometric equations. The lessons are designed in a manner that ensures easy comprehension for students of different educational boards. By following these tutorial videos, students can enhance their problem-solving skills, gain insight into crucial trigonometric identities, and develop a deeper understanding of the subject. The step-by-step explanations and solved examples in these videos enable students to grasp the underlying concepts effectively. With the availability of this educational resource on YouTube, students can access these trigonometric equations tutorials at their convenience. Ignited Minds Tutorials initiative to provide comprehensive and detailed explanations demonstrates their commitment to excellence in education. Whether a student is preparing for competitive exams or simply aiming for a thorough understanding of trigonometric equations, the video series offered by Ignited Minds Tutorials is an invaluable resource that facilitates learning and helps students excel in their studies. चलो कॉपी किताब निकालिए, एक पेन होता है उसमें से लिखना पड़ता है, निकालिए जरा फटाफट। थैंक यू सो मच आपका भाई साहब। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये राइट द सोल्यूशन ऑफ द सेट, ये कल किया था ना हमने, ये हो गया था ना। ओके, दिस वाज डन। व्हाई आर वी गेटिंग इट अगेन? Write the solution set of cos 3x minus cos 4x, cos 5x minus cos 6। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग। ये भी हो गया है? नहीं हुआ है? क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अरे क्या बात कर रहे हो, ये टाइम वेस्ट होता रहेगा भाई साहब, हैं? मन बना के आए, आज टाइम वेस्ट ही करना है। ये लास्ट था, चलो भाई साहब। cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4 फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। क्या हुआ, क्या हुआ? तेजस्वा आया है, चोरों की तरह आता है भाई सर एकदम से। और तेजस क्या हाल? चलो बस ऐसा करना है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। ओके, cos थीटा into cos 2 थीटा into cos 3 थीटा इसको आपको प्रूव करना है वैसे 1/4। तो आपने जबरदस्ती का इसमें वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो 2 into 2 cos थीटा cos 3 थीटा into cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा भाई साहब। इस 4 को इधर उठा लो, है ना, ये प्रूव करना है ना तुम्हें, तो इस 4 को इधर उठा लो, सॉरी प्रूव नहीं करना है, तो सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो यहाँ पे तुमने 2 को उठाया, यहाँ पे 2 अंदर आ, 2 cos a cos b कितना हो जाएगा? तुम करेंगे देखो क्या
करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे? ओए देखो भाई साहब, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 3 थीटा और cos थीटा का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पहले ये समझो, ठीक है? फॉर्मूला में तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन cos थीटा और cos 3 थीटा का कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि cos a + b/2 आ जाएगा हमको, और a + b/2 में आपको cos 2 थीटा मिल जाएगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है? दैट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस, ठीक है? वरना आप बोलोगे ये कॉम्बिनेशन भी तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमको मिलेगा 3 थीटा/2, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, cos a + b भाई साहब कितना होता है? cos a + b cos a cos b minus sin a। जब इस तरीके के फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो अगर cos a cos b है तो ऐसा इसमें आना है आपको, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो होता है cos का फंक्शन ही ऐसा है जहां पे कॉम्बिनेशन cos और cos में ही होता है। ये वाला कॉम्बिनेशन में देखो sin और sin नहीं है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है? अदरवाइज अगर आप sin a minus b करेंगे तो sin a cos b minus cos a sin b, ठीक है? तो वहां पे sin और cos दोनों खेलेंगे। यहाँ पे एक लॉग फंक्शन है जहाँ पे आप एक cos के फंक्शन से sin के फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, cos a minus b कितना हो जाएगा भाई साहब? cos a cos b plus sin a sin b, क्लियर है प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ इफ वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस, ठीक है? अगर हमने भाई साहब इसको सबट्रैक्ट किया तो सबट्रैक्ट करने से तो ये हो जाएगा, हमको ये चाहिए तो हमको इसको उड़ाना है, ठीक है? तो हम ऐड कर देंगे भाई साहब, तो यहाँ पे cos a plus b plus cos a minus b कितना हो जाएगा? वो यहाँ पे ये हो गया आपका कैंसिल, दिस विल बी हाउ मच? 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, क्लियर? क्लियर? तो आपका 2 cos a cos b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? cos a plus b to cos a minus b, 2 cos a cos b, इसको आगे ले लो, क्या फर्क पड़ता है? cos थीटा है cos थीटा है, ठीक है? यहाँ पे a plus b कितना हो जाएगा आप देखो, दिस विल बी cos 3 थीटा plus थीटा, तो ये हो गया आपका 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब cos 3 थीटा minus थीटा, दैट इज cos 2 थीटा, ठीक है? इनटू cos 2 थीटा is equal to 1। क्या समझ में आया भाई साहब? समझ में आ रहा है? ठीक है? 2 cos a cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b, तो 2 cos थीटा plus थीटा हो गया, थीटा minus थीटा। देखो अगर आपने थीटा minus थीटा भी लिखा तो क्या होगा? -2 थीटा होगा, और cos का फंक्शन माइनस को हजम कर देता है, तो cos -2 थीटा will also give you cos 2 थीटा, ठीक है? तो आपका वैसा यहाँ पे हो गया cos 4 थीटा, तो 2 cos 4 थीटा plus cos 2 थीटा। अच्छा अभी आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब, ठीक है? इससे मल्टीप्लाई करके इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, cos 4 थीटा cos 2 थीटा is equal to 1, तो 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा plus 2 cos square थीटा minus 1 is equal to 0, ठीक है? तो आपका वैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos square थीटा minus 1, ये 2 cos square थीटा minus 1 हो गया, और ये वैसा बेटा आ गया, ठीक है? 2 cos square थीटा minus 1, देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 minus 2 sin square थीटा, या आप देख सकते हो वैसा 2 cos square थीटा minus 1। अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 2 cos square 2 थीटा minus 1, ठीक है? तो इधर कितना हो जाएगा? cos 4 थीटा हो जाएगी, 2 cos square 2 थीटा minus 1 है, 2 cos square थीटा minus 1 होता है आपका cos 2 थीटा, तो 2 cos square इस थीटा का आपने कर दिया 2 थीटा, तो ये वाला 2 थीटा भी क्या हो जाएगा? 4 थीटा, ये हो गया आपका 4 थीटा, है ना? तो यहाँ पर हो गया आपका वैसा cos 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो? cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी वैसा क्या हो गया? cos 4 थीटा ये हो गया 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 4 थीटा की वैल्यू हो गई 0, और यहाँ पे 2 cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई कितनी? -1, ठीक है? क्लियर? ओके, cos 4 थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो दिस विल बी हाउ मच? cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वो 2n + 1
पाई बाई 2 है 2n + 1 पाई बाई 2 क्लियर ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos, यहाँ पे माइनस cos कितना आ रहा है वैसे, माइनस cos बोलो ना बोलो पाई बाई 3 है कि नहीं, ऐसे भी हुआ समझ आ रही है। माइनस cos थीटा मतलब cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे हो गया आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3। अगर cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी रहती है बोलो, थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा तो क्या है मालूम 2n, हां 2n phi plus minus alpha, so that will be 2n phi plus minus 2 pi by 3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हुई भाई साहब 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड कर दो n phi plus minus pi by 3। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया भाई साहब, सॉल्यूशन सेट हो गया थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 n is equal to 2n plus 1 pi by 2 n is equal to z यूनियन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब n pi plus minus pi by 3 n is equal to z। ठीक है, this would be the okay। so आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया केस 1। अरे यार इसको पहला वाला आंसर क्या है भाई साहब 0 थीटा पाई, तो आपका आ गया भाई साहब कैसे पाई बड़ी हो जाएगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। करेक्ट, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0 अगर होता है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो भाई साहब आपका 4 theta will be equal to 2n plus 1 pi by 2, that will mean theta will be equal to 2n plus 1 pi by 8। ठीक है, theta will be equal to 2n plus 1 pi by 8। ओके, अभी हमारा देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है greater than 0 less than 5, तो अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं n की वैल्यू अगर 0 है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रो, तो pi by 8, क्या ये pi by 8 between 0 and 5 हो रहा है, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, और वो भाई साहब n की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 pi by 8। इज दिस आल्सो एन एक्सेप्टेबल वैल्यू, यस इट इज। ठीक है, ओके, n की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 2 2 4 4 plus 1 5 pi by 8 एक्सेप्टेबल वैल्यू है भाई साहब, यस। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए भाई साहब यहां पे क्या क्या हो गया आपका pi by 8, then we have 3 pi by 8, then we have 5 pi by 8। ओके, n की वैल्यू अगर हमने भाई साहब 3 ले ली तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 6 1 7 7 pi by 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 7 pi by 8। n की वैल्यू अगर हमने 4 ले ली 2 4 जा 8 8 plus 1 9 9 pi by 8। यहाँ से भाई साहब आप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ से वैसे बहुत कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये हो गई वैसे ये वैल्यूज। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट वैल्यूज वी गिवन, अरे व्हाट वैल्यूज वैसे अब हमको करना है क्या cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, so now we will talk about cos 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0, which will give you how much 2 cos 2 theta is equal to minus 1, which eventually gives you what cos 2 theta is equal to minus 1 by 2। cos 2 theta is equal to वैसा क्या हो जाएगा minus cos 5 by 6 5 by 3। ठीक है, minus cos 5 by 3, तो ये हो गया cos 5 minus 5 by 3, ये हो गया cos 2 theta। So this will be how much 3 cos
2 पाई बाई 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई। अगर cos थीटा की वैल्यू होती है cos अल्फा के बराबर, थीटा की वैल्यू होती है 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो दैट विल बी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई वैसा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ओके। अगेन हमको अब वैसा क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, पाई बाई 3। एक्सेप्टेबल वैल्यू है भाई साहब, तो माइनस वाला नहीं कंसीडर कर सकते, सिर्फ प्लस वाला ही कंसीडर कर सकते। प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा, इसमें हम माइनस पाई बाई 3 नहीं ले सकते, सिर्फ पाई बाई 3 को ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया वैसे आपका पाई बाई 3। ठीक है, n की वैल्यू 1 लेके हमने कितना आ गया बोलो, थीटा विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3। इसमें कितना आ जाएगा आपका बोलो, 4 पाई बाई 3। एक्सेप्टेबल वैल्यू है नहीं, ठीक है, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। दूसरा क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, 2 पाई बाई 3। एक्सेप्टेबल वैल्यू है वैसा वेरी मच, ये हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, फिर n की वैल्यू पर हमने 2 ले ली वैसा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 3 to the 6 7 पाई बाई 3, नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले ली तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो गया वैसा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 3 3 to the 6 ये पाई बाई 3। दिस इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। ये आपकी वैल्यूज है, पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ठीक है, अभी क्लियर हो दिस वैल्यू। तो केस 1 4 थीटा इज इक्वल टू दिस, तो पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 10 इज इक्वल टू 4 9 पाई बाई 8 नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ओके, इसमें आते हैं वैसा हम, तो इसका वैल्यू हो गया वैसा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 नहीं कर सकते। ठीक है, 2 पाई बाई 3 उठा सकते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, देखो पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। अभी क्लियर हो गई इस चीज को, बहुत बढ़िया वैसे। चलिए वैसे शुरू करना है। तो देखो ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये किस टाइप का इक्वेशन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। और हमेशा इस टाइप के इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है आपका, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरा a कितना आ रहा है बोलो, a की वैल्यू आ रही है कुछ भी ले लो भाई साहब, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √3। ठीक है, साइन थीटा है ना, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 है कि नहीं, -1 आ गया भाई साहब आपका। ठीक है, तो आपका भाई साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, दैट विल बी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 1 + 3 दैट इज √4 दैट इज 2। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब अभी हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपका √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 to be divided by 2, so that will be √3/2 sin theta minus 1/2 cos theta is equal to √2। तो ये हो गया भाई साहब 1/√2, है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज, नहीं साइन में लिखिए, साइन में लिखिए, बताता हूं क्यों। साइन कितना हो जाएगा, ये साइन π/3 है ना भाई साहब, साइन π/3 साइन थीटा, साइन π/3 साइन थीटा माइनस कॉस π/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। इस पूरे 1/√2 पूरे को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो यहाँ पे हो गया आपका कॉस π/3 कॉस थीटा माइनस साइन π/3 साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, cos π/3 प्लस
थीटा, है ना भाई साहब, यही हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कितना होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और इधर माइनस हाफ है, माइनस हाफ है मतलब माइनस कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और माइनस कॉस पाई बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ये होता है भाई साहब आपका, ठीक है। और इधर कितना है आपका कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा में अपन क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा में अपन क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, नहीं बक ये कहाँ है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो दिस विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब पाई बाई 4, है कि नहीं, पाई बाई 4। और इधर कितना है भाई साहब आपका पाई बाई 3 प्लस, हाँ अरे हाँ यहाँ पे पाई माइनस 3 पाई बाई 4, करेक्ट 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो पाई बाई 3 प्लस थीटा, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाएंगे आपका, पहले तो आपने प्लस वैल्यू ले ली किसकी 3 पाई बाई 4 की, माइनस पाई बाई 3, बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 12, 4 3 12, 3 3 9, 9 पाई माइनस 3 4 12, 4 पाई, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 12, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, अगर मैंने किया यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, so this will be how much 12, 4 3 12, 3 3 9, माइनस 9p, 9 पाई हो गया भाई साहब ये माइनस 9 पाई, और ये हो गया 3 4, तो ये हो गया 4 पाई, है कि नहीं, है कि नहीं भाई साहब, यही होगा ना। तो ये हो गया आपका कितना माइनस 13 पाई बाई 12, ठीक है। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस 13 पाई बाई 12, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12, where n is equivalent to integers union the set of 2n pi minus 13 pi by 12, where n is equal to set of integers. Are we clear through this one people? हम समझम बहुत बढ़िया, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अगर आपने भाई साहब डिवाइड कर दिया तो आपका इधर आ गया कितना भाई साहब थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू, अच्छा साइन में लिया हुआ इसको, ठीक है। कॉस में भी देखिए आंसर पॉसिबल है, अगर आपने कॉस में लिया आंसर तो भी पॉसिबल है, ठीक है। आपने अगर साइन में लिया तो ये आंसर आएगा, अगर आपने कॉस में लिया तो भी आंसर पॉसिबल है। यहाँ पे साइन ए माइनस बी किया गया है, ठीक है, नॉट अ इशू। चलो भाई साहब इसको करना, अरे भाई साहब कर ही डालो, अभी बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, आसान हम आसान। Write the solution set of under root 2 sin x plus cos x is equal to under root 3। चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको। अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट साइन x
प्लस √2 cos x इज इक्वल टू भाई साहब कितना, √3। अगेन वी कैन कंपेयर दिस टू, ऐसा कर लेते हैं भाई साहब, इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका हो गया भाई साहब √2 cos x प्लस √2 sin x इज इक्वल टू √3, ठीक है। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, जिसमें अपन करेंगे क्या भाई साहब, इस पूरे को डिवाइड करेंगे √a² प्लस b² से। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2, तो a² प्लस b² कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 प्लस 2, दैट इज हाउ मच, 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो इस पूरे सिचुएशन को आप डिवाइड करो भाई साहब किससे, 2 से, ठीक है। तो √2/2 cos x प्लस √2/2 sin x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इज इक्वल टू √3/2। 1/√2 मतलब कितना होता है, cos π/4, है ना। सो दिस विल बी cos π/4 cos x, ठीक है, प्लस sin π/4 sin x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, x को पहले कर लो, है ना, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। तो cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4 इज इक्वल टू cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, √3/2। अंकिता क्या कितना हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, जल्दी से बोलने हैं, π/cos कितना होता है, 30 इज इक्वल टू ना, तो π/6, ठीक है, ओके। cos a cos b प्लस sin a sin b कितना हो जाएगा, cos a माइनस b, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos π/6। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है कि नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस π/4, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2n पाई प्लस माइनस π/6, है कि नहीं, ठीक है। अब इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे भाई साहब, तो आप x को अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस π/4, ठीक है। अभी इसके दो वैल्यू हो गए भाई साहब, एक जगह आप करेंगे माइनस π/6 प्लस π/4 और दूसरा आप करेंगे π/6 प्लस π/4, तो ये हो गया आपका कितना, 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया माइनस 2 पाई, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया प्लस 3 पाई, सो दैट विल बी π/12, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो गया भाई साहब आपका 12, 6 2 ज़ा 12, 2 पाई, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 पाई, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 π/12। तो इधर कितना आ जाएगा आंसर, 2n पाई प्लस माइनस, सॉरी, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 2n पाई, ये कितना आया भाई साहब आपका प्लस, और इसका भी प्लस, 2n पाई प्लस π/12, और दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस 5 π/12, ठीक है। सो आपका आंसर फॉर x विल बी इक्वलेंट टू 2n पाई प्लस π/12 where n is equivalent to integers union 2n pi plus 5 π/12 where n is equivalent to integers, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, बहुत हंसी आ रही है तुमको, अब इसमें क्या कर दिया भाई साहब इन लोगों ने, वही है ना, 2n पाई प्लस 5 π/12, 2n पाई प्लस पाई, यही आंसर आता है ना अपन ना, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ cot x प्लस cosec x इज इक्वल टू √3। चलिए फटाक से करना है इसको भाई साहब,
हेलो। ओके, कॉट एक्स मतलब कितना हो जाएगा बोलो। So this will be cos x by sin x plus sin x by cos x is equal to under root 3. So that gives you how much है people? अरे बोलो ना, बोलो कितना? हाँ, 1 by sin x. Okay, okay. So that will be 1 by sin x. तो ये हो गया 1 plus cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, अंडर रूट 3 है ना। ओके, 1 plus cos x तो अपन करते हैं इसको cos x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 sin x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, cos x माइनस अंडर रूट 3 sin x इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, है कि नहीं भाई साहब? समझम -1 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, सो अपन कर सकते हैं इसको भाई साहब, अभी आप कर लो इसको डिवाइड कर दो। तो इसको अगर हम लिखते हैं भाई साहब a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट 3, है ना। तो आपका भाई साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 1 प्लस 3, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4। ये हो गया भाई साहब आपका 2। ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे अभी इसको डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे भाई साहब, डिवाइड बाई 2। सो 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, हाफ कॉस एक्स। ओके, क्या लिख सकते हैं भाई साहब इसको, आप हाफ को क्या लिखेंगे, बोलो ना, बोलो, अरे बोलो जल्दी से बोलो। कॉस पाई बाई 6 कॉस एक्स हाफ है तो पाई बाई 3 होगा। कौन बोला ये, कावेरी। पाई बाई 3 कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, साइन पाई बाई 3 साइन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस कॉस पाई बाई 3 ना, 60 कॉस 60 ना, तो पाई बाई 3 है ना भाई साहब। ठीक है, क्लियर। सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, पाई माइनस पाई बाई 3। सो दैट विल बी हाउ मच, कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस कितना हो गया भाई साहब, 2 पाई बाई 3। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू, गड़बड़ हो जाएगा यार ये, साइन ले लेंगे लोग, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको साइन से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन को, ये गलत नहीं था स्टेप, लेकिन आपका cos x बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है भाई साहब। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो अपन का हो गया भाई साहब यहाँ पे क्या, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 3 साइन एक्स, इस कॉस एक्स को इधर ले लिया, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले लिया भाई साहब, अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। इसको अपन अभी देखो 3 प्लस 1 है ना, अगर इसको अपन कंपेयर करें किससे भाई साहब, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c से। सो a की वैल्यू यहाँ पे जो भी मान लो भाई साहब, a की वैल्यू हो गई भाई साहब -1, b की वैल्यू हो गई भाई साहब अंडर रूट 3। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल,
-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी √4 दैट इज 2। तो इस पूरे को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया √3/2 साइन x माइनस 1/2 कॉस x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी आपको साइन x लेना है, साइन x, ये साइन x लिख दिया। कॉस के किसके वैल्यू के बराबर होती है, √3/2 पाई बाई कॉस π/3 है ना, कॉस 60, कॉस 60 कहाँ वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस π/6 π/3 ना, हाँ नहीं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस कौन से वैल्यू होगी, पाई 30 ना, तो π/6 है ना, π/6 माइनस कॉस x और यहां पे हो गया साइन π/6 है ना, साइन π/6। साइन के फंक्शन में हाफ कभी आ जाएगा भाई साहब आपका साइन π/6 में। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, सो x माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन π/6। ठीक है, क्लियर है। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर होता है, साइन थीटा इफ इट इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, तो n पाई n इंटू π/6 प्लस -1 रेज टू n, और यहाँ पे भाई साहब आपका अल्फा दैट इज π/6। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x माइनस π/6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n π/6 प्लस -1 रेज टू n π/6 प्लस π/6 है ना भाई साहब। ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका x का वैल्यू। क्लियरम 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 पीपलम। ठीक है, गेट द सोल्यूशन सेट। अभी यही तो हो गया वैसे सोल्यूशन सेट। केस 1 है, क्या बोल रहे हो, अच्छा इसको ऐसा तोड़ना रहे। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये तो हमारा भी आ गया था सोल्यूशन। देखो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n π/6 प्लस π/6। अभी ये n जो है तो आपका ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अगर भाई साहब हुआ ये ऑड तो -1 ही रह जाएगा, अगर इवन हुआ तो आपका +1 आ जाएगा, है ना। तो -1 रेज टू 2m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m पाई प्लस π/6 प्लस π/6 दैट विल बी π/3। ठीक है, एंड इफ n इज ऑड देन दिस विल बी 2m माइनस π/6। तो ये हो गया आपका कितना बोलो, 2m प्लस पाई 2m π/6 प्लस π/6 सॉरी पाई माइनस π/6 प्लस π/6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m प्लस 1 पाई व्हेन m इज इक्वल टू इंटीजर। तो ये आपके दो वैल्यूज हो गए। ओके, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, हाँ अल्फा नहीं आ रहा है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ पे π/3 है, वैसे यहाँ पे अल्फा की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ 2m प्लस 1 पाई आ रहा है। सो दिस इन दिस केस द सोल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। तो एक ही सोल्यूशन होगा आपका 2m पाई प्लस π/3 वेयर m इज इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, ओके ओके ओके, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 वेयर थीटा इज लेस देन 2 पाई एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।